Yes, students, in last class we have studied about incomplete dominance and co-dominance mainly. In incomplete dominance, we have seen that there is a different phenotype in F1 और F2 में 1:2:1 आ रहा था, both genotype as well as phenotype. Okay, and in codominance there are more than two allele in population and both allele we can say expressing themselves, तो वहां था codominance. Now today we have to discuss about independent assortment, that is also known as law of independent assortment. Here independent mean we can say random, or assortment we can say combination or collection. So what do you mean by independent assortment or random combination? Now in law of dominance and law of segregation we have seen that we have taken their monohybrid cross. In monohybrid cross we have taken only single character. Now what about more than one character, two character, or more than two character? So they are following the simple rule of dominance and segregation or not. So here for this Mendel done another cross, that is known as dihybrid cross. So he has taken two characters, that means we can say two pairs of contrasting traits or characters. टू पेयर, तो यहां पर इसने लिए सीड के करेक्टर. वन इज सीड कलर and other is seed shape. We know that there are two color of seed, one is yellow and other is green. तो येलो डोमिनेंट है, तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल वाई एंड ग्रीन को डिनोट करेंगे स्मॉल वाई. सो दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज recessive. Now we talk about seed shape. Then there are two type of seed shape. One is round and second is a wrinkle. तो round है, that is dominant है, तो we will denote this by capital R and wrinkle small r. Dihybrid cross mean the cross between two different characters, और वो क्या होना चाहिए, contrasting and pure. क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए. पेरेंट मस्ट बी प्योर. नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? सो डाइहाइब्रिड क्रॉस में टू कैरेक्टर, हमने दो कैरेक्टर क्या लिए, सीड का कलर, सीड की शेप. सीड के कलर के दो ट्रेट हैं, येलो एंड ग्रीन. सीड की शेप के राउंड एंड रिंकल्ड. ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इसमें क्या कह रहा है कि इट मीन्स inheritance of one character is not dependent on inheritance of other. That means inheritance of one character is not depend on inheritance of other character. यानी कि अगर एक कैरेक्टर कोई आगे जा रहा है तो दूसरा कैरेक्टर है वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि तुम आएगा तो ही मैं आऊंगा. लाइक वी कैन से कि देयर आर टू स्टूडेंट, लाइक ए एंड बी है, देयर आर टू स्टूडेंट, एक बच्चा एब्सेंट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी नहीं आएगा. ओके, ये तो आएगा. और यू कैन से टॉक अबाउट टू फ्रेंड, जो क्लोज फ्रेंड है, एक फ्रेंड एक दिन स्कूल में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी नहीं आएगा, बिकॉज दे बोथ आर
independent. So their assortment and their, we can say that inheritance is independent. So inheritance of one character is not dependent on inheritance of other character. बात आई समझे? अब कैरेक्टर क्या लिया थे हमने, सीड का कलर एंड सीड का शेप. दैट मीन्स द इनहेरिटेंस ऑफ, it means inheritance of seed color is not dependent on seed shape. ठीक है, आज की भाषा में कहते हैं ये आत्मनिर्भर है. मोदी जी भी कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर बनाओ. तो दैट मीन दे आर द इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर है. तो इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सीड शेप. ओके, तो कैसे है, हियर द असॉर्टमेंट इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मीन यहाँ पर क्या होता है, रैंडम कॉम्बिनेशन होती है. वी नो दैट एट द टाइम ऑफ मियोसिस और गैमेट फॉर्मेशन, अगर हम इफ यू टॉक अबाउट स्पर्म और मेल गैमेट, तो मिलियंस ऑफ मेल गैमेट स्पर्म बनते हैं और कौन सा कहाँ जाके फ्यूज हो जाए, दिस इज द ओनली रैंडम चांस है. एंड दे फॉर्म द डिफरेंट possibilities. Now the basic rule we follow the same, but here we have to take two characters. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या करा है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर नॉट डिपेंडेंट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ अदर. दैट कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से आता जाता है. ओके, नाउ कम टू द क्रॉस. नाउ डाइहाइब्रिड क्रॉस we have to take pair. So I am taking here राउंड येलो, सीड है राउंड येलो, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2, वी हैव टू मेक क्रॉस विद wrinkled green. Now see here, these parent must be pure. जो पेरेंट्स हैं must be pure. अब देखो जो कैरेक्टर है दैट शुड बी प्योर. अब जो कैरेक्टर है मैंने राउंड और येलो लिया है, तो मैं राउंड के साथ ग्रीन ले लूं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं रिंकल के साथ राउंड ले लूं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज माई कैरेक्टर इज राउंड अलग कैरेक्टर है, येलो अलग कैरेक्टर है. तो दैट मीन दिस राउंड कैरेक्टर शुड बी प्योर. यहां मेरा प्योर से मतलब है कि दिस शुड बी आर आर वाई वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये ऐसा होना चाहिए. इट नॉट लाइक कि आर आर या वाई वाई, दिस शुड बी नॉट लाइक दिस. द पेरेंट्स मस्ट बी प्योर, ये बात ध्यान रखना. अब इसको एक डोमिनेंट एक रिसेसिव ले लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इन क्लास 10 दिस इज गिवन लाइक दिस. यहाँ पर राउंड के साथ ग्रीन है और रिंकल के साथ येलो है. क्लास 10 की टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया, बट इन क्लास 12 दिस इज गिवन राउंड येलो रिंकल ग्रीन. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस कुड बी आर आर वाई वाई और दिस कुड बी आर आर वाई वाई, इससे कोई फर्क नहीं. बट दिस मस्ट बी प्योर, दिस मस्ट बी प्योर. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाए तो. नाउ हाउ वी विल डिनोट देम, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई. नाउ सी, at the time of gamete formation this pair would separate from each other and ये भी पेयर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. यहाँ पर ये पेयर सेपरेट होगा, यहाँ पर ये पेयर सेपरेट होगा. बट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ऑल कैरेक्टर्स, ऑल जीन्स, ऑल द क्रोमोसोम, दैट मीन्स हाफ क्रोमोसोम है वो आने चाहिए उसमें. ठीक है, जैसे मानो देख दिस सेल with only 2 chromosome. तो this is the chromosome number 1, this is the 1 dash मीन इसकी कॉपी है. this is the chromosome number 2, then 2 dash, ये इसकी कॉपी है. तो at the time of meiosis, जब meiosis होगा तो that means this should be like this, यानी कि एक इसमें आओ, एक and then second, then 1 and second. that means chromosome 1 भी हो, O2 भी हो, बट इसकी कॉपी एक हो. ये कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में हो सकता है, दिस कुड बी 1 2, दिस कुड बी 1 2 डैश, दिस कुड बी 1 डैश 2, दिस कुड बी 1 डैश 2 डैश. ओके,
और भी कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्या? बट इसका मतलब क्या है कि इस पेयर में से एक क्रोमोसोम हो, इस पेयर में से एक क्रोमोसोम हो। इन ह्यूमन बॉडी देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो हर एक पेयर का एक क्रोमोसोम है एक सेल में एटलीस्ट। तो दैट मीन्स इन वन सेल देयर आर 23 डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम। ऐसा नहीं है कि 23 कोई भी आ जाए, दैट मीन्स इन पेयर में से एक आना चाहिए। तो यहाँ से जब गैमेट बनेंगे, इसको ध्यान से समझना है। That means when there is a formation of gamete, तो gamete would be like R Y, ऐसा बनेगा। There is a possibility of formation of 4 gametes, R Y सभी एक जैसे होंगे तो एक ही लिख रहे हैं। Now इससे क्या बनेगा? Gamete R Y, ये लो। तो if we made cross between them, then it would like capital R, small r, capital Y, small y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये क्या आया? राउंड येलो, राउंड येलो इन F1। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कर रहा है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। बट यहां हमने क्या लिखा कि यहां राउंड के साथ येलो था और यहां भी राउंड के साथ येलो आ गया, तो ये क्या हुआ? समझ में आ रही है बात क्या? तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, तो दैट मीन यहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। देन वी हैव टू मूव टू F2 जनरेशन। तो देन वी कैन से कि समथिंग इज देयर और नॉट लाइक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और नॉट। ओके, तो दैट मीन्स R स्मॉल r स्मॉल y गेमेट्स बने R स्मॉल r स्मॉल y, R F1 बना। F1 में राउंड येलो है ऑल, that means all थे राउंड येलो। नाउ कम टू F2। अब इसमें होगा नहीं, दोबारा से बना दो उसको। नाउ दिस इज आवर प्लांट। ओके, नाउ हियर इसी में क्या है? स्टेमन है, और इसी में क्या है? हमारा ओवरी है। तो दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो देयर एंड ओवरी इज ऑल्सो देयर। ओके, तो इसको मैं दो में डिवाइड कर रहा हूं। लाइक how many types of gamete could be formed here? Here I am talking about male, here I am talking about female. तो what could be the possibility of gametes? ये R इस Y के साथ जा सकता है, तो एक गैमेट बन सकता है R Y। ये R इस स्मॉल y के भी साथ जा सकता है, तो बनेगा कैपिटल R स्मॉल y। दिस स्मॉल r कैन गो विद कैपिटल R कैपिटल Y, तो स्मॉल r कैपिटल Y देन स्मॉल r स्मॉल y। देयर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। किसके? मेल गैमेट बनेगी। तो इतनी ही पॉसिबिलिटीज किसकी बनेगी? फीमेल गैमेट की। तो R Y and small r small y. Now we have 4 different kinds of male gamete and 4 different kind of female gametes. तो अब इनको आपस में जब ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज में ये मैच कर सकते हैं आपस में। नाउ सी, here is the capital R capital Y, capital R small y, small r capital Y, small r small y। ये किसका हो गया? मेल का। फीमेल का होगा कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। नाउ सी हियर, ये इसके साथ देन इसके साथ देन इसके साथ देन इसके साथ कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दिस वुड बी R दिस वुड बी R कैपिटल Y स्मॉल y, R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये कैसा होगा? राउंड येलो, ये भी होगा
राउंड येलो, ये भी होगा राउंड येलो, ये भी होगा राउंड येलो. Now come to second. This could be capital R, capital Y, small y, capital R, small y, small y. Now capital R, capital Y, small y, capital R, small y, small y. तो अब देखो ये होगा वापस वही राउंड येलो, देन ये आ जाएगा राउंड ग्रीन, देन अगेन ये राउंड येलो, देन ये आ जाएगा फिर राउंड green. Okay, now come to this capital R, small r, capital Y, capital R, small r, capital Y, small y, small r, capital Y, small r, capital Y, small y. तो ये हो गया अगेन राउंड येलो, अगेन राउंड येलो, बट ये हो गया, देखो ये होगा ये रिंकल्ड येलो, और ये भी होगा रिंकल्ड येलो. नाउ लास्ट लाइन में क्या होगा हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y. तो ये हो जाएगा हमारे पास अगेन राउंड येलो, देन राउंड ग्रीन, देन wrinkled yellow, and then wrinkled green. Okay, तो ये possibilities बनेगी. Now there are total 16 possibilities and we are having 4 different kinds of seeds. Okay, with their color. तो एक कौन सा हो सकता है round yellow, second is round green, then third case could be wrinkled yellow, and fourth case is wrinkled green. ऐसे हैं. अब काउंट करो राउंड येलो को. राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है राउंड येलो. नाउ राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2 एंड राउंड ग्रीन 3. तो ये हैं 3. द रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3. तो ये हो गए 3, और रिंकल ग्रीन बचा 1, तो ये हो गया 1. तो दैट मीन्स F2 का फिनोटाइप हमारे पास आया 9:3:3:1. 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल ग्रीन, 1 रिंकल ग्रीन. तो फिर इसे मतलब क्या हुआ? इट मीन्स सी हियर according to independent assortment inheritance of one character is not dependent on inheritance of other. तो देखो राउंड के साथ येलो आया है, राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया. ओके, देन येलो रिंकल्ड के साथ भी आया था या राउंड के साथ भी था, एंड ग्रीन रिंकल्ड के साथ भी आ गया. दैट मीन्स ग्रीन राउंड के साथ भी है और रिंकल के साथ भी है. तो दैट मीन राउंड विद येलो, राउंड विद
green, then yellow with wrinkled and yellow with round, then green with round, green with wrinkled. दैट मीन बोथ कैरेक्टर किसी के साथ भी आ सकता है, राउंड के साथ ग्रीन, येलो कोई भी हो सकता है, रिंकल के साथ भी कोई भी हो सकता है. दैट मीन बोथ कैरेक्टर आर इनहेरिटेडली इंडिपेंडेंट, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. So this is known as law of independent assortment and its F2 phenotypic ratio is known as 9:3:3:1. Okay, तो there are total 16 possibilities है. ओके, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया. तो राउंड के साथ येलो है, यहाँ राउंड के साथ ग्रीन है, यहाँ येलो रिंकल के साथ आ गया, पहले राउंड के साथ था. ग्रीन यहाँ राउंड के साथ है, यहाँ रिंकल के साथ है. रिंकल यहाँ ग्रीन के साथ है, यहाँ येलो के साथ है. दैट मीन बोथ कैरेक्टर्स आर इनहेरिटली independent, there is no relationship between. So there is, this is known as independent assortment because due to random distribution of gametes, or we can say जो स्पर्म हो रहा है उनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्यूजन होता है, तो वो कोई कैरेक्टर कहीं है कोई कहीं है, वो उससे मिलता है. तो दिस इज नॉन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वेयर इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर. तो क्या आएगा 9:3:3:1. क्लियर है? तो यहाँ तक करना है.